my journey with Guruji is very, very beautiful, as happiness and little sorrows in that. But let's start with the happiness when I met Guruji in 1999. It was such a beautiful, blessed day. I will say that I got to get connected with Guruji. I used to work at Sahara Airlines, and वहाँ पे there was a captain Chopra who was suffering with cancer. He said तू बड़ा गुरु गुरु कर दी रहंदी है, चल तेनू एक गुरु कोल जाके मिलाना. I said ठीक है. So I just got married, and I just मैं कहा ठीक है, it's good because मैनू बचपन तो बड़ा है गुरुद्वारे जाना, कीर्तन करना, गुरबानी सुनना. And he took me and my uncle that day to Empire State. And जो संगत Empire State गई हैं, माथा टेक है, so it's so divine, so beautiful. And that was my very, very luckiest day. I would say that I got that. Such a beautiful day to meet our Guruji. The moment I enter the Empire State, Guruji in his green chola, beautiful chola, sitting on his अपनी गद्दी पे बैठे हैं, and very royal look. Normally when we visit, when we think or we go for कि गुरु को मिलन जा रहे हैं, normally we think that white chola होगा, yellow chola होगा. But our Guruji is amazing. So Guruji and Guruji's cholas are amazing. So the moment I entered, I just saw Guruji, and I said, wow, very handsome Guruji, like sitting in a beautiful chola and all. And then we moved further, and then हमने सबने माथा टेका, and I also do the same what Captain Chopra did. And then after that, we were looking for a seat to sit. Normally, Guruji सब बात करते थे, but सारी संगत जाती थी, माथा टेकती थी, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते थे. फिर गुरुजी जैसे जैसे आज्ञा देते थे, वैसे वैसी चीजें, वैसे वैसे संगत उसी हिसाब से करती थी. Then what happened, like मैंने जैसे जगह अपनी ढूंढनी शुरू करी, तो somebody said, आंटी गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ बुला रहे ने. So I said, auntie, so 26, 27 years, a newly married person. मैं कहे मैनू किवें आंटी बुला रहे ने, मैं ते हाले आंटी टाइप लुक लग रही है मेरी. So this is what was there in my mind. And then somebody told me, आंटी इत्थे इस तरह ही एड्रेस किया जाता है, अंकल ते आंटी. Then I was little okay. Then I said, अच्छा. Then I just thinking कि हो गया, मतलब why Guruji is calling me. So मैं गुरुजी को गई, तो गुरुजी ने क्या, मुक्ता आंटी इत्थे बैठ जा. We must have heard Guruji's videos. Guruji's Punjabi is amazing, and I'm from Amritsar, so I also Punjabi tone in my. उस तो बाद सत्संग शेयरिंग होया. गुरुजी ने एक अंकल ਨੂੰ इशारा किया, और गुरुजी ने बोलिया, ये आंटी ना डांस करूगी, वो गुरदास मान दा गाना लगा दो. उस टाइम में कुछ एक कंगना का एक सॉन्ग आया था, पंजाबी सॉन्ग, एंड छल्ला. तो उन्होंने गुरुजी ने जैसे आज्ञा दी, एक संगत अंदर चलेगी म्यूजिक लगाने, और मैं गुरुजी को देखने लग गई कि how to, first of all, he knows that I love dancing, and secondly, यहाँ पर गुरबानी चल रही थी. यहाँ पे एक ऐसा ऑरा था, ऐसा माहौल था, जैसे हम बचपन से एक मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं,
सो द ऑरा, और एकदम यहाँ पे डांस सिंगिंग वाज लाइक आई जस्ट गॉट कि फिर देन आई लुक्ड एट माय हस्बैंड लाइक माय अंकल, बिकॉज मैं क्या पता चले कहा जाके लड़ाइयां ही हो जाए कि ये किथे गए सी जिथे डांस वांस तू करन लग गई. My uncle said it's fine and मतलब इशारे नाल मैनू कहता. एंड देन गुरुजी ने म्यूजिक भी ऑन कराता. ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਂਟੀ ਕਿੰਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, what a beautiful blessings, what a beautiful उनका कहा हुआ, आंटी ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ. such a powerful, beautiful. ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ समझ ਦਿੱਤੀ ਸੀ जिन्ना ਅਸੀਂ समझ पाए. मैं क्या, अच्छा मैंने ये जरूर देखा था शिव तांडव, शिव जी की आराधना पूजा में खूब डांस होता है. एंड आई एम ऑल्सो शिव भगत. ऐसे मैं क्या इतने हुन पूरी तरह फस फुस ही गया. चलो हुन कर ही लेने हैं डांस. एंड जस्ट सी our Guruji is so amazing. He knows how to heal, how to bless, and how to take care of his sangat. अब it is a मेरा कल्याण हो रहा है. And I'm thinking too much about few things. which way संगत जी मैं खड़ी हुई तो गुरुजी ने क्या, आंटी दिलों जिਵੇਂ दिलों कर दी है ऊंज ही डांस कर. Now संगत जी, we all know हमारे भाव is so important for anything. गुरुजी ने ऐसे हमारे दिल में भाव भर दिए कि इतना प्यार भर दिया है कि जो चीज हम करते हैं दिल से कर रहे हैं और दिल से करना ही चाहिए. सो मैं क्या, गुरुजी नो सो मच अबाउट मी. मैनू कहते दिलों डांस कर. मैं बिकॉज ही न्यू दैट आई लव डांसिंग एंड थ्रू माय डांसिंग he wanted to bless me, he wanted to cure me, he wanted to do whatever he must have thought for me. आज हमारे भाव ही हैं जो इस वर्ल्ड में गुरु जी के लिए ये भाव है, संगत के लिए एक दूसरे के लिए भाव है, जो आज हम एक साथ जुड़ गए हैं. इतना क्लिंस कर दिया है गुरु जी, डे बाय डे क्लिंस कर रहे हैं कि that we should become some better human being where we can serve positivity, spread positivity, help each other and गुरु का गुणगान कर सके. बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी उस प्यारे पल का. आपने मुझे इतनी संगत के बीच में आपने मुझे चुना और आपने वो मुझे प्लेटफॉर्म दिया. उस प्लेटफॉर्म की वजह से, उस प्लेटफॉर्म के प्यार से मैं आज आप सबके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ. एंड हु आई एम, I'm nobody at all. I'm just a normal human being. But it is Guruji's grace and meher that he knows the best for us. तो संगत जी, then मैं क्या, चलो होते, you know, I start dancing and all. And फिर तो पंजाबियां नू की बस शुरू हो गए पैर वैर हुण किथे स्टॉप हुंदे. इन्ने वधिया म्यूजिक लग गया उथे. And I started. एंड बड़ा 2-3 गाने च बड़ा रौनक मेला होया, बड़ा डांस वांस होया. एंड गुरु जी वाज वेरी हैप्पी, लुक्ड एट मी. हुन आंटी मतलब यू नो आई लाइक he looked at me, he smiled on at me and then he said, आंटी ठीक है ना? मैं कहा हाँ जी, कुछ होया ते नहीं? अंकल कुछ नहीं कहेगा घर जाके, चिंता ना करी. Imagine how and then, you know, I said, how does he know that I having this kind, you know, this is all. जब हम नए नए किसी गुरुजी से जब जुड़ते हैं, जब नए नए हम
हमारे डाउट्स होते हैं संगत जी, एंड आई 100% श्योर जो हम सब अभी इस ग्रुप में जो भी संगत सुन रही है, उनके भी बहुत माइंड में बहुत सारी चीजें चलती है, इवन मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीजें चलती है, बट गुरुजी इज सो अमेजिंग कि उन्होंने जैसे ही डांस मेरा फिनिश हुआ एंड ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड, आंटी चिंता ना करी, इमेजिन, एंड देन आई सेड, मैं कहा शायद उन्होंने ना मैंने अपना दिमाग लगाया कि शायद उन्होंने मेरा इशारा देख लिया होगा, जो मेरे को कुछ करते हुए देख लिया होगा। दिस इज माई थॉट्स। कहते हैं ना, गुरु दे दरबार ते आए हो, अपनी सोच बाहर ही छੱਡ के आओ, पर ਅਸੀਂ सोच ते नाल ही लेके चलनी है, क्योंकि ਅਸੀਂ अपनी सोच ते लगानी लगानी है। That was my first day, Sangat ji, and the journey started like this. And there was some kind of, there was such a some power, supernatural power was there, जो मुझे बहुत खींचती थी उस तरफ जाने के लिए। एंड मेरी आई वॉज इन सहारा एयरलाइंस, सो हमारे मॉर्निंग शिफ्ट होना 2:30 बजे, टाइमिंग वॉज वेरी, बट अंकल को बायस्टर चले, वेरी नाइस, तो वो बेचारे मेरे साथ चल पड़ते थे। बात करना गुरुजी से, गुरुजी इतनी फ्रेगनेंस आती थी संगत जी की, ऐसे लग रहा था इतनी फ्रेगनेंस, एंड गुरुजी वाज, एंड मैंने तो कई बार जब वो के अपने रूम में थे, तो कभी कभी मैं उनका चोला लॉस, मुझे ऐसे लग रहा था गुरुजी कैसे, मतलब गुरुजी जा रहे हैं, आई कांट सी हिज फीट आल्सो। एंड जब गुरुजी आते थे अपने रूम, लाइट सी आती थी उनके साथ, फूलों जैसी रोज बड की फ्रेग्रेंस आती थी। तो ऐसे गुरुजी के पास जाने लग गए, शुरू हो गया, ही इज लाइक माय फ्रेंड और व्हाट, मतलब मैं कहा गुरुजी मैं जाना भी हैगा एयरपोर्ट, 2:30 बजे पिकअप आ जा, ते मैं आज हम इस सत्संग में ज्वाइन करते हैं, लाइव भी जाते हैं, पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लीव कर लेते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन करते हैं। पर गुरुजी के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। जो दरबार में एक बार आ जाते थे, बिना गुरुजी की आज्ञा के कोई नहीं जा सकता था, चाहे वो रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए। ऐसे ही मेरे साथ होता था संगत जी की, सबको गुरुजी आज्ञा दे देते थे, एंड आई एम सिटिंग, और मैं गुरुजी को हमेशा ये कहना, मैं कहा गुरुजी ये अंकल दा की होएगा, इन्होंने भी ऑफिस जाना है, तो 2 घंटे दी नींद पूरी है, फ्रेश हो जाएगा। तो मेरी ना किसी अंकल की ड्यूटी लगा देते थे कि इन्हू जाके छाड़िया, तो एंड आई यूज्ड टू से, मैं कहा गुरुजी बिकॉज आई एम इन एयरलाइंस, मैं कहा गुरुजी मैनू साड़ी, मतलब आई हैव अ यूनिफॉर्म ऑफ साड़ी, तो मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू दिस स्मॉल, जैसे एक बच्चा नहीं होता कैसे वो बच्चों की तरह बातें करना। मैं कहा गुरुजी साड़ी है, पहनी यूनिफॉर्म पाना पैंदा है, 1-2 घंटे लग जांदे ने, ते गुरुजी ने अगो किसी नु कहना, अंकल इनू ना छड़िया ही 2:30 बजे तक, ते इनू 3 बजे छड़ आई। तो किसी एक पालम विहार में अंकल है, अनिल अंकल, उनको ड्यूटी लगा देते थे। तो गुरुजी की मैं इनू छड़िया, और ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੋ, मतलब सो के तू अपने ऑफिस चले जाए। एंड संगत जी टुडे आई रियलाइज आई नेवर एवर हैव दैट काइंड ऑफ वीकनेस कि मैनू नींद आ रही सी, मैं ना फ्रेश कदी मैनू पता ही नहीं लग्या कि मैं सारी सारी रात सुती नहीं है, बिकॉज एंड मैं नो हाउ tedious job is at the airport once your airport is duty, मैनू कदी उथे फील ही नहीं होया। बट ये तब संगत जी इतनी समझ नहीं थी, ना एहसास हुआ। ये गुरुजी ने तब मुझे एहसास तो शायद मैं नर्सरी के काबिल से केजी में पहुंचने की काबिल हुई तब, अदरवाइज मेरे को उस टाइम मुझे कुछ ऐसा फीलिंग ही नहीं आती थी कि मैं, दिस इज हाउ द जर्नी वाज ऑन एंड ऑन। देन वन डे माय अंकल
मैं एक दिन गई, आई वाज लिटिल, मतलब मेरा आई एम वेरी, मेरे पता वेट पुट ऑन हो रहा सी, थायराइड निकल आया। मैं क्या बड़ा हाइपर है, 600 ਦੇ ਉੱਤੇ 700 ਦੇ ਉੱਤੇ पहुंचे हुए हैं, यू नो। सो ही ब्लोटेड वेरी मच एंड वेरी, वो तो ग्लैंड्स, किसी डॉक्टर ने हमें डरा दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब हमें क्या मालूम, हम तो इतनी बड़ी दात, इतनी बड़ी जग के डॉक्टर के आगे बैठे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टरी जी के पास हैं, तो हमें नहीं चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोच, तो गुरु जी ने मैनू कहा कल ना लोटा लेके आई तांबे दा। मैं कहा अच्छा गुरु जी। अगले दिन ਅਸੀਂ तांबे दा लोटा लेके गए, ਤੇ गुरु जी ने लोटा ब्लेस किया। लोटा ब्लेस करके गुरु जी ने क्या, ए अंकल, मतलब अंकल तो एक तो ही इज फ्रॉम लखनऊ, पंजाबी इतनी आती नहीं है, और गुरु जी के साथ जब बैठते थे तो वो जब पंजाबी बोलते थे तो अंकल मुझे देखते थे कि गुरु जी की ठेठ पंजाबी है, तो वो अब क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अंकल ए लोटे तो जल पीना है, ਤੇ 3 दिन बाद टेस्ट कराना है, फिर मेरे को लाना। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, 3 दिन बाद टेस्ट टूस्ट कराया, फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ अपना गुरु जी कोल गए रिपोर्ट लेके। एंड संगत जी वोंट बिलीव, जब ਅਸੀਂ रिपोर्ट लेके गए तो गुरु जी ने अभी रिपोर्ट खोली, मैंने मतलब आई हैव नॉट इवन ओपन दैट रिपोर्ट। आंटी ठीक है ना, रिपोर्ट तो ठीक है, हुन ते टेंशन नहीं ना। Oh my God, Sangaji, like that was the turning point in my life of feeling that the supernatural power, for how does Guruji knows कि बाकी चीजों में तो सोचते गए कि शायद इशारा देखा होगा, कुछ देखा होगा कुछ, बट ऐसे अभी तो मैंने रिपोर्ट भी नहीं खोली है, मैंने तो गुरुजी को कुछ अभी बताया भी नहीं है। एंड हाउ डज गुरुजी नोज इट? एंड आई सेड मैं क्या, अगेन द चाइल्डिश टॉक विद फ्रॉम मी टू, मैं क्या गुरुजी हाले तो मैं खोलिया भी नहीं, तो सारा कुछ पता है कि रिपोर्ट च की है। एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड। Just have that feeling of Guruji, that every Swaroop is smiling, is saying us, hasde ro, te vasde ro. It's so beautiful that जब Guruji smile करते थे, like there is a such a light face from his body, like I can't even pinpoint कि said, हाँ यार, गुरुजी is something, गुरुजी has some power, पहले हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, but later धीरे धीरे that day was my turning when थायराइड का गुरुजी ने कहते फिर हो जाए मुक्ता अंश, just few sentences makes you so happy. I said हाँ जी गुरुजी, and my dance was like कि ठीक है, अब तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी बोल रहे हैं तो हम डांस कर रहे हैं। सो ऐसी जर्नी चलती गई, प्यारी प्यारी जर्नी चलती रही। देन मेरे पेरेंट्स, वी आर फ्रॉम अमृतसर, लाइक वी सरदार, माय डैड रांची पे गई है। देन वन डे व्हाट हैपेंड, दे वर हियर एट माय प्लेस द पासपोर्ट। तो मैं कहा वो गुरुजी हैं, चलो तो सही, क्या पता कुछ अपना उधार हो जाए, कुछ गुरुजी बता दें। तो पता नहीं क्या उस दिन वो मान गए मेरे डैड, एंड मी, माय मॉम, डैड एंड माय हस्बैंड, वी ऑल फोर वेंट टू गुरुजी एम्पायर स्टेट। एंड अभी मैंने था भी देखा था, तो गुरुजी कहते आने वाली थी कि गुरुजी ये मेरे डैडी है, तो कहते हाँ बड़ा परेशान है, पासपोर्ट खो गया है। Oh my God, I said, my dad looked at me कि how does he knows? तो मैंने कहा यही तो गुरुजी हैं, मैं आपको बता रही थी। देन गुरुजी ने आज्ञा दी, हम पीछे आके बैठ गए। देन डैड मुझे कहने लगे कि मेरे मतलब डैड अंकल की भी अच्छा होते गुरुजी ने कुछ किया नहीं अगों, मैं क्या हुने वो बुलाएंगे तो दसणगे सानू। देन थोड़ी देर बाद गुरुजी ने सानू बुलाया,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉसी ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਚ ਇਹ ਫਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। मतलब इमेजिन करो गुरुजी इज लाइक, मतलब आप सोच भी क्या रहे हो और वो क्या आपकी चीजें पहले से रेडी हैं। इट्स सो सो अमेजिंग गुरुजी, लाइक आई हैव नो वर्ड्स, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं कि मुझे इस जन्म में उस कैप्टन चोपड़ा अंकल का, जो मुझे आपके पास लेके गए, चाहे किस तरह की भी उस समय बातचीत से हम गए, जहाँ सोच से गए, पर उसका, उस अंकल का, उस जी, मैंने बड़ी बड़ी संगत से सुना है बेचारे, मतलब दे हैड गॉन टू एम्पायर स्टेट एंड उन्हें क्या, आ जाए गुरु है, मैं मत्था टेकन जा रहे हैं। दूजी संगत ने क्या, नो ना मैं ते गुरु नु मनदा नहीं, तू जाना तू जा। कैन यू बिलीव, वही संगत आज ऐसे जुड़ी हुई है गुरु जी से कि मैं बता, मतलब उनका टाइम ही नहीं था, उनकी आज्ञा ही नहीं थी गुरु जी की। और इवन गुरु जी के टाइम में ये भी होता था कि गुरु जी जिसको बुलाना होता था गुरु जी बुलाते थे, और कभी कभी गुरु जी ये भी कहते थे, आज आया हूं ना आई, मतलब कि कभी कभी ऐसे भी बोलते थे कुछ कुछ संगत को कि आज आ गया है, दोबारा ना आई। इतनी संगत एम्पायर स्टेट के आसपास रहती थी, इतनी संगत जो अंदर एम्पायर स्टेट के रहते थे, जिन जिन की वो ब्लेसिंग्स, जो डिवाइन वो ऑरा जिस जिसके नसीब में था, उसको वो चीज की ब्लेसिंग्स मिली है गुरुजी से, और हम जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। एंड देन बैक टू माय सत्संग दैट माय डैड सेड, एक किस तरह हो सकता है, एंड मी बीइंग अ एयरलाइंस पर्सन, ते मैंने अपनी एयरलाइंस में बात करी थी, टिकट अगर थोड़ी आगे पीछे हो जाए, समथिंग लाइक दैट। अगले दिन वो अपने पासपोर्ट ऑफिस गए, यू वोंट बिलीव, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ नहीं होएगा नुकसान। और काम ऐसे बनते चले गए कि everything was done and I was like amazed। मैं क्या देख लिया डैडी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਦੇਖिए ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ मेहर देखिए, and he just smiled at me and just and won't believe हुआ गुरु जी का वो लफ्ज बिल्कुल सही। इट्स तो कितना शुक्राना संगत जी। the journey when Guruji one day, the beautiful part of my journey, which I can never ever, मतलब कैसे मैं अपने दिल से आपको बताऊं कि रात का टाइम था, गुरुजी ने सारी संगत को आज्ञा दे दी थी, कहने मुक्ता आंटी मैं तेनू एक मंदिर लेके, बड़े मंदिर लेके चले, एंड यू नो, मतलब चलो मंदिर चलो, बड़े मंदिर चलो। मुझे नहीं पता था संगत जी बड़े मंदिर उस समय मंदिर, मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं कोई मंदिर होगा। फिर उन्होंने, देन वी वर 10-12 संगत, गुरुजी की कार निकली, गुरुजी की कार में हम बैठे, हम गुरुजी के साथ बैठे, और गुरुजी ने फिर मुझे बताया ये मंदिर, बड़े मंदिर के बारे में, एंड हम ड्राइव करते हुए बड़े मंदिर पहुंच गए। एक इंसान जो भगवान के साथ बैठे हैं, भगवान के साथ बात कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस ये पता है ये गुरुजी हैं, एंड यू नो, मतलब गुरुजी हैं, एंड उसके बियॉन्ड धीरे धीरे भगवान उसके पावर डाली। एंड आई वाज लाइक गुरुजी, you everybody have seen गुरुजी's कार, उनका ड्राइवर भाई, एंड यू नो उनकी सीडी, ये गुरदास मान की शब्द भी, गुरदास मान की सीडीज भी, एंड हम पहुंचे बड़े मंदिर, एंड यू नो द मोमेंट आई सॉ शिवलिंग, आई सेड गुरुजी वाओ, इतना बड़ा शिवलिंग मैंने तो कभी देखा ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। एंड देन ही लुक्ड एट मी,
He smiled at me. Then we walked. संगत धीरे धीरे चल रही थी. गुरुजी बहुत फास्ट वॉक करते थे. एंड मैं गुरुजी के साथ आगे आगे. गुरुजी 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 कहते हैं. हाँ, गुरुजी was taking the round of बड़े मंदिर. What a blessing that I with Guruji had taken me to बड़े मंदिर. एंड मुझे एक एक जगह गणपति जी आए, फिर वो शिव जी. अभी वो मतलब अभी जस्ट फिनिशिंग हुआ था बड़े मंदिर का. अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था. एंड पूरा हम घूम के वी गो टू द मेन दरबार के बाहर जो थड़ा है, मार्बल थड़ा. गुरुजी वहां जाके वहां पे ऑलरेडी आसन मतलब उनका गद्दी था. गुरुजी वहां जाके बैठ गए. हम संगत भी वहां जाके बैठ गए. एंड नाउ गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, आंटी आज फिर इनॉग्रल हो जाए, डांस हो जाए थे. आई वाज लुकिंग एट गुरुजी ने रात के 12 साढ़े 12, आई डोंट नो द टाइम. ऐसे गुरुजी ऐस वेले डांस म्यूजिक ते है नहीं. एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, इन 10 मिनट्स पता नहीं कहाँ से म्यूजिक भी आ गया, सब कुछ आ गया. एंड और मैंने कहा चलो गुरुजी कह रहे हैं. अब तो ये था कि गुरुजी ने कहा. एंड आई जस्ट लव टू डांस. सो मेरा डबल प्यार से मैं डांस करती थी. अब गुरुजी जब बैठे तो गुरुजी ने कहा, मुक्ता आंटी आज ना जब तक मैं ना कहवा मतलब यू हैव टू कीप ऑन डांसिंग. गुरुजी ने ये कहा और उन्होंने अपनी आईज क्लोज करी. वो अपने ध्यान जो उन्होंने अपना ध्यान लगाया था, जो भी था उन्होंने अपनी. तो मुझे लगा होगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट. एंड गुरुजी जा रही हूँ, करती जा रही हूँ. फिर मैं गुरुजी की तरफ से मैं कहा, गुरुजी आंखें खोलो. गुरुजी आंखें खोल ही नहीं रहे. एंड मैं कीप ऑन डांसिंग डांसिंग डांसिंग. 20 मिनट्स हो गए, 25 मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स हो गए. एंड गुरुजी इतनी स्वीट स्माइल में आराम से अपनी आंख क्लोज की हुई. और कौन से ध्यान में गुरुजी है. मैं क्या गुरुजी आईज ही नहीं खोल रही है. एंड मैं करे जा रही हूँ. अब ये हो गया कि गुरु ने कहा है ये मुझे करना है. नो, हियर इज द कनेक्शन with us to Guruji, because गुरु का कहा मतलब हम पढ़ते हैं अपनी बानी में, गुरु का कहा हम कितना अपनी लाइफ में उसको अमल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम गुरबानी पढ़ते हैं, चुपई साहब पढ़ते हैं, सुखमनी साहब. अब मेरे अंदर भी यही फीलिंग उस समय यही आई कि गुरुजी ने कहा है डांस करना है एंड वो करना है चाहे. एंड नाउ एट अ टाइम आई वाज अबाउट टू, जैसे मतलब इतने विंटर में मुझे इतना सर्दी थी और इतना स्वेटिंग कर रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी. बट गुरु ने कहा है, गुरु ने कहा करते चले जाओ. एंड यू नो बीइंग अ पंजाबी वो एक वो भी रहता है यार, गुरु ने साडे क्या है ऐसा किस्सा हो सकता है, ਅਸੀਂ लड़ते रहेंगे करते रहेंगे. यू नो दैट 1 hour समथिंग की अखा खोल लिया. I just you know. एंड गुरुजी ने मुझे कहा, मुक्ता आंटी बहुत मजा आ गया, जा ऐश कर, कल्याण कीता. संगत जी ये 2 बहुत बड़े ब्लेसिंग्स हैं. हम जब पहले सुनते थे कल्याण कर, जैसे बड़े लोग हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, पर ये गुरु की ब्लेसिंग्स है. इतनी बड़ी ब्लेसिंग है. लगता यही है ऐश कर जा कल्याण कीता, लगता ऐसे ही है कि 2 वर्ड हैं, पर इसी 2 वर्ड में हमारे इतनी गुरुजी ने लाइफ में ब्लेसिंग्स भर देते हैं कि कोई चीज आके भी गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता. सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ संगत जी की इतना प्यार, इतना मुझे ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने उस दिन. एंड मुझे बहुत एक अंदर से ऐसे लगा कि जैसे मैं मैं कुछ कर पाई, मतलब मेरे गुरु ने मुझे कहा था और मैं कर पाई. एंड आई वाज हैप्पी इन दैट वे कि मैं गिरी नहीं, मैं थकी नहीं, मैं मतलब गुरु के आगे झुक नहीं गई. मतलब झुकना इन द सेंस मैं गुरु जी के आगे मैं गिर नहीं गई, मैं
गुरुजी ने बोला और मैं ये चीज कर पाई, तो दैट थिंग वाज, मैं उसके लिए बहुत खुश थी और गुरुजी मुझे अपनी उस खुशी में ब्लेसिंग्स दे रहे थे. सो संगत जी, इट्स सो ब्यूटीफुल जर्नी. नाउ द टाइम कम्स when things got so much the way that I have never ever thought. इतना प्यारा, इतनी प्यार, इतनी, मतलब कि क्या बताऊं. गुरुजी का यही रहता था कि गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि सारे लोग सब कुछ मंगते ने, मैनू मुंडा दे दे, कोई कहना मैनू कार चाहिए, कोई कहना मेरी, पर हम गुरु को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो गुरुजी चाहिए. अगर हमारी जिंदगी में गुरुजी हैं, आई थिंक वी हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ. वहां पर कितनी संगत, कोई लड़के के लिए आती थी, कोई अपने काम के लिए आती थी, कोई संगत अपने जिठानी दिरानी के लिए आती थी. ब्लैक मैजिक के भी होता था, वहां भी गुरुजी के पास आए थे, वो भी मैंने वो संगत को देखा था. हर आदमी अपना अपना दुख लेके आता था, पर गुरुजी हमारे को यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि हमने कभी गुरु को नहीं माना, मतलब हमने अपनी प्रेम में हमें गुरु को मानना है, मांगना है. ये चीजें संगत जी नाउ, अब संगत जी इतना प्यारा गुरु मिला, इतना प्यारा प्यार मिला गुरु का, के बावजूद भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं गुरु जी से डिस्कनेक्ट हो गई. ये वर्ड, एक डिस्कनेक्ट एक वर्ड नहीं है, मतलब मैं कैसे बताऊं. दिस वर्ड इज वेरी बिग वर्ड फॉर मी टुडे, बिकॉज मैंने वो सब चीज, वो सारा टाइम, वो सारी जो मेरा गुरु के साथ मिलना, गुरु जी के साथ बैठना, वो मैंने सब खो गया. और उस खोने पे इस डिस्कनेक्ट वर्ड को मुझे बहुत हर्ट करता है. क्यों गुरुजी, मैं क्यों डिस्कनेक्ट हुई, क्यों गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्यों गुरुजी ऐसी अगर मेरी कोई भी सोच या मेरी कमी रही होती, आप तो गुरु थे, आप मुझे बुलाते, आप मुझे समझाते, आप मुझे अपनी चीज बताते. पर वो उन्हीं की मर्जी थी जब मैं कनेक्ट हुई, उन्हीं की मर्जी सी मैं डिस्कनेक्ट हुई. गुरुजी डिस्कनेक्ट नहीं हुए, मैं डिस्कनेक्ट हुई. हालांकि गुरुजी हमेशा अक्सर बुलाते थे कि जा अपने प्राणों लेके आई. और संगत जी, मेरे सब कॉन्शियस में हमेशा गुरुजी रहते थे. मैं जब भी एमजी रोड निकलती थी तो मैं हमेशा देखती थी गुरुजी, और मैं फील करती थी गुरुजी. फिर मुझे मैं कहा गुरुजी तो सब बुला लेते थे, शायद मुझे भी एक दिन बुला लेंगे. और ऐसी टाइम में बेबीज हो गए, अपनी ऐसी लाइफ में बिजी हो गए कि हम चलते चले गए, पर गुरुजी की कृपा तो थी, पर हम अपना चलते रहे और मैं गुरुजी के वहां दरबार में जाना छोड़ दिया. इस बात को मैं जब भी शेयर करती हूँ, मुझे बहुत पेन होता है कि इस बात को सोच के भी कोई कैसे डिस्कनेक्ट हो सकता है जिसको गुरु मिला, प्यार मिला. ये चलता गया और उसके बाद ये जर्नी. देन आई हर्ड अबाउट गुरुजी 2007. तब भी एक हमारी एक कॉन्शियस होती है, एक सब कॉन्शियस होती है. सब कॉन्शियस में हमेशा मेरे साथ गुरुजी की थॉट्स रहती थी, और उसी ब्लेसिंग्स थॉट से मैं शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी. देन आई हैव अ डॉटर, देन अब तक बहुत बिजी हो गए. अब कुछ काफी साल निकल गए इस बात को, और धीरे धीरे मैंने गुड़गांव में देखा कि हर जगह गुरु की महिमा, गुरु की कृपा हो रही है. गाड़ी के स्टिकर्स के पीछे, जिसके घर चले जाओ स्वरूप है गुरुजी का, जिसके शॉप चले जाओ गुरुजी का स्वरूप है. इतनी संगत, इतनी संगत, इतनी संगत गुरुजी की.
हर जगह मुझे 2012 में गुरुजी की संगत, आप देखो दो उससे पहले गुरुजी के उन संगत, किसी के उस समय कोई संगत भी नहीं मिली, कोई मुझे कोई स्टिकर भी नहीं दिखे कभी, कुछ भी नहीं। यहाँ की टाइम आ गया है, उन तेनू तेरे गुरु की लोड़ पड़ेगी। तो गुरु ने कैसे मुझे कैसे कनेक्ट कराया। 2012 में मैं, लाल जी है मेरा वहां पे सामान था, उन्होंने जैसे नॉर्मली हम सब करते हैं, यू आर ऑल्सो गुरु ने जय गुरु जी किया, तो अच्छा आप भी गुरु जी को जानते हैं, आप भी गुरु जी को जानते हैं, अच्छा आप कब से जुड़े हैं, हम 2012 से जुड़े हैं, आप कब से जुड़े हो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि द मोमेंट आई यूज्ड टू से दैट हाँ हाँ मैं तो गुरु जी से मिली हुई हूँ 1999 में, जैसे मैं ये दो शब्द बोलती हूँ, इतना प्यार संगत का कि आप आंटी गुरुजी से मिले हो, फॉर देम लाइक इज कि आप पता नहीं, एंड द वे दे लुक्ड एट मी, दे सेड आंटी इफ यू डोंट माइंड कैन आई हग यू, एंड आई सेड ये संगत जिसने गुरुजी को मिले नहीं, हाँ की बहुत इच्छा है मिलने की, देखने की, कि मेरे ड्रीम में आ जाए। इतना प्यार संगत का कि मेरे सिर्फ ये कहने पे कि मैं वो चीज निकली कि जैसे मैं हूँ क्या हूँ, पर गुरुजी ने अपना प्यार दिया। They touched, they want to feel that Guruji fragrance, they want to feel Guruji. And then they said, आंटी आप आपको हक करेंगे तो हमें लगेगा हमने अपने गुरु को हक किया। इतनी प्यारी संगत गुरुजी आपकी है कि एक छोटे से नॉर्मल इंसान को इतना प्यार और मान दिया, मतलब कि मेरे वर्ड्स ही नहीं है। से एक और आंटी के घर गई जो गुरुजी का स्वरूप दे दिया, आंटी आप डिस्कनेक्ट, एंड हर जगह गुरुजी गुरुजी गुरुजी, संगत मिली गुरुजी की, जिस शॉप में जाना गुरुजी, जिसके घर में जाना गुरुजी, उससे पहले कहीं गुरुजी नहीं मुझे नहीं दिखे। ऑफ कोर्स गुरुजी तो हमें देख ही रहे, पर मेरा कनेक्शन जब गुरुजी ने करना था तब उन्होंने करा। उस दिन का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने फिर से इस संगत पे मेरे पे वो कृपा करी कि मुझे दोबारा से कनेक्ट कराया अपनी ही संगत से, थ्रू आपकी संगत ने, आपके इतने प्यार भरे सारी चीजों से। उसके बाद मैं संगत जी 2013 में 29 जुलाई में, कुछ डेट्स आप जिंदगी में भूल नहीं पाते, जैसे बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, कि उस डेट पे, उस समय पे मैं 29 जुलाई 2013 पे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई जस्ट टोल्ड माय ड्राइवर कि एक छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, क्योंकि मैं तो उसके बाद गुरुजी के मंदिर गई ही नहीं। मैं तो तभी गई थी जब गुरुजी मुझे लेके गए थे, उसके बाद तो मेरे को चांस ही नहीं मिला, क्योंकि बड़ा मंदिर ऑफिशियली अभी नहीं था और फंक्शंस में ही जाया करते थे गुरुजी। एंड मैं गई, एंड मेरी दोबारा से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। शुक्राना गुरुजी, मेरी सारी गलतियां माफ करी गुरुजी। मुझे मैं हर सत्संग में जुड़ी, अपने में ये रहा कि क्यों 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 मैं बहुत बहुत रोती रहती थी कि मैंने इतनी कैसे मैंने किया। बट वीकनेस संगत जी ऐसे हैं, he knows how to heal, he knows how to cure, he knows how to bless you। आज ये जो सारी संगत जुड़ी है गुरुजी के साथ, गुरुजी का आप देखो घर घर सत्संग हो रहा है। गुरुजी ने कहा था आने वाला समय बड़ा माड़ा है, बहुत माड़ा है, कार का सत्संग होंगे,
मंत्र जाप करया करो। हर घर में सत्संग हो रहा है, मंत्र जाप की लड़ियां जल रही हैं, 1-to-1 कनेक्शन है, कोई स्ट्रेस नहीं सत्संग का। इतना प्यारा सत्संग, यही हम, क्योंकि हमारे गुरु जी इज वेरी सिंपल। इससे बस मैं ते पाव देखदा तो मैनू दाल नाल भी प्रसादा, यू डोंट हैव टू मेक 4-5 थिंग्स, तेरे बस भाव, गुरु जी हमारे भाव देखते हैं। जैसे इन आंटी का भाव देख के आई वाज सो मच टच्ड कि मुझे लगा कि आंटी इट्स माय सेवा, डोंट वरी अबाउट द टाइम, ये तो गुरु की सेवा मिली है, चाहे वो रात के 10 हो 11 बजे हो, आई एम देयर फॉर माय गुरुजी एंड गुरुजी संगत। उसके बाद संगत जी मेरा ऐसी जर्नी जब डिस्कनेक्शन में फिर आई, फिर बहुत देर गुरुजी ने पंजाबी च कहंदे ना नींबू दे नाल मैनू निचोड़िया, मतलब इतना मुझे क्लिंस किया, इतना मुझे निचोड़ा। उसके बाद मैं गुड़गांव के मैग्नोलियास में थी, आई शिफ्टेड मैग्नोलियास, तो वहां पे कनेक्ट होने के बाद पहली बार वहां सत्संग ऑर्गेनाइज किया। देन आई जस्ट लुक एट, आई सेड कोई गुरु दा गति नहीं लग रही। एक दिन राती बेसमेंट च पिछे जिहदे स्टिकर होएगा वो गुरु दी संगत होएगी। आई केप्ट ऑन रोमिंग, मैनू कोई नहीं मिलिया। रुमित चावला आंटी इज ओल्ड संगत, वो भी गुरु जी नू मिले हुए ने, बहुत ब्लेस है। शी वाज देयर इन मैग्नोलियाज, एंड मानू चोपड़ा वो एम्पायर स्टेट ही रहंदे ने, वो भी मिले है। एंड रुमित आंटी मेरे को आंदी, आंटी सत्संग कर रहे हो, कोई सेवा होए दसना। मैं कहा हाँ जी। मैं कहा आंटी इत्थे इन्नी सोहनी सोसाइटी है मैग्नोलियाज, इत्थे गुरु दा कोई गुणगान ही नहीं, इत्थे गुरु जी दे कोई संगत नहीं है। तो आंटी ने कहा नहीं, अभी यहाँ पर और तो कोई संगत अभी जुड़ी नहीं है, अभी तो मैं ही हूँ और एक मेहरा आंटी है, मेहरा सन्स वाली, गुरुजी उनके शोरूम में भी जोड़ने के बाद कैसे अपनी लड़ी में भी लगाना था। मुझे नर्सरी से केजी, अब केजी से फर्स्ट भी जाना है। ये तो हमारी गुरुजी के साथ तो हमारी ये है कि हम वैसे कुछ बन पाए जैसे हमारा गुरु चाहते हैं। उस मैग्नोलियाज में हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में हम लोग 4 लोग थे, और भी मैंने ऐसे मैग्नोलियाज ग्रुप में बड़े मंदिर का स्वरूप डाला। 5-6 आंटियां आई, कहती आंटी ये क्या है, कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर है। मेरे के बड़े मंदिर है, गुरु जी का मंदिर है, क्योंकि शिवलिंग को देखते ही एवरीबडी गॉट सो इम्प्रेस्ड, हमें ले लो। मैं कहा कि मैं, गुरुजी मुझे किस रास्ते लेके जा रहे हैं। मैं, हम लोग सिमी आंटी और पूनम आंटी, मतलब जो भी हम थे, हम लोग गए बड़े मंदिर है। उनको बहुत, वो कहते हमने ऐसा डिवाइन मंदिर कहीं देखा ही नहीं है, इतना सिस्टमैटिक, इतना अच्छे से। उसके बाद हम लोग आए, धीरे धीरे मुझसे संगत पूछने लगी कैसे होता है सत्संग। मैं अपना सत्संग करती थी, संगत आने लगी, संगत आते 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 संगत जुड़ने लगे और मंदिर जाने लगी। और गुरुजी ने मुझे इसी सेवा में अपने लगा दिया कि मुक्ता आंटी हुन, मतलब ही मस्ट हैव थॉट कि सेवा लगन लगी है तो साथ में सेवा भी है। और आप मानोगे संगत जी, आज गाड़ी के पीछे गुरुजी का स्टिकर है। घर घर इतनी संगत है मैग्नोलिया दरालियाज में, संगत ही संगत है, इतनी सत्संग को ऑर्गेनाइज कराना गुरुजी की मेहर इतनी कि ये सेवा मुझे उन्होंने दी कि मैं कुछ कर पाऊं। और उन्होंने मेरे पे बिलीव किया गुरुजी ने, और मुझे इस रास्ते डाला कि मैं ये सब चीजें कर पाऊं। और मैं ये करती चली गई। आज संगत जी, यू वोंट बिलीव, जैसे वो ग्रुप में आज मोर देन 100 संगत जुड़ गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल एक परिवार बन गया है। उस चीज का लख लख शुक्राना गुरुजी
कि आपने मुझे उस काबिल बनाया, मेरे अंदर वो समझ डाली कि मैं कुछ आपके कहे हुई चीजों को मैं फॉलो कर सकूं। ऐसे ही संगत जी ये चलती गई और गुरुजी ने अपने साथ मुझे है कि मैं कोविड 19 कई लोगों को ब्लेसिंग्स भी है, कई लोगों को डिस्गाइज भी है। मेरे लिए बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग्स हैं कि इस कोविड 19 में जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला शेयरिंग का, और वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हुई मैं गुरुजी के मेहर से। मैं रविंदर जी जो सिंगर हैं, फिर उनको फिर ब्लेसिंग्स में, फिर दुबई, फिर सिंगापुर, फिर यूएस, दीपक अंकल, और ये लड़ी चलती चली गई। और आज फिर मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ कि मैं आप प्यारी संगत के साथ बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग सबकी लाइफ में है। गुरुजी सत्संग शेयरिंग इसी के लिए कराते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम नॉर्मली गुरबानी सुनते हैं और बिजी हो जाते हैं कि मुझे सोना है, मुझे ये चाहना है। पर गुरुजी, जब मैं लाइव हमेशा गई हूँ गुरुजी के पास, गुरुजी ने सत्संग शेयरिंग, जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है, और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है। हमें पहले लगता था कि ये, हाँ, अब मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि मैं ऐसे करूंगी, मैं ये वाला अपना शेयरिंग करूंगी, पर जब मैं बोलना शुरू करती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। अब मेरे सारे सत्संग आप सुन लो, हर सत्संग में गुरुजी मेरे से कुछ अलग ही करवा जाते हैं। जो मुझे संगत, वो कहते हैं हम आपके इतनी बार सत्संग सुन सुन के, बट फिर भी जब भी आप आप सत्संग करते हो, देयर इज समथिंग न्यू। अब मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे शायद, आई डोंट नो मेरा क्या न्यू लगा, बट ये तो गुरुजी की कृपा है, मेहर है कि कैसे कराते हैं। सो संगत जी, ये जो हमारा एक गुरु के प्रति जो हमारा है, वो बहुत बहुत, हमारा जो भाव है वो हमारे, यही हमें लाइव रखता है। और गुरुजी ने वैसे ही कहा था कि आने वाला टाइम जैसे आपका बहुत बुरा है, पर हमने इस कोविड 19 में भी गुरु गुरु के भरोसे, गुरु की कृपा से हर हर संगत ने अपने गुरुजी को थामे रखा है, और गुरुजी ने हमें थामे रखा है कि हम इस महामारी में, इस टाइम को हम निकाल सके। एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस व्हिच आई गॉट, आई नेवर शेयर्ड इन माय, उस दिन मैं बैठी थी गुरुजी के स्वरूप के आगे, तो मेन बात मेरे सत्संग में थी, मैं हमेशा, आई थिंक मैंने शेयर ही नहीं करी कभी, शायद दिमाग में नहीं आया, गुरुजी ने मुझे अब डाला कि मेरा डांस was my, by Guruji was, he was blessing me and he was curing me, because before my first child मेरे पहले 2 मिसकैरेज हो चुके थे। अब आप देखो संगत जी, इतना मैंने सत्संग किया है अपनी जर्नी का, पर ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो कैसे मुझे कनेक्ट हुआ वो भी मैं बताती हूँ। परसों अबू धाबी में मेरा सत्संग शेयरिंग था, वहां पे मेरी एक आंटी फ्रेंड थी, उनके बॉयलर हुआ था, जो शी ऑल्सो शेयर्ड कि जब मैं अपने डांस का हीलिंग बता रही थी कि पता नहीं कितने मेरे अंदर के उर्जे पुर्जे गुरुजी ने ब्लेस किए, और गुरुजी ने मेरी को कहाँ कहाँ ब्लेस किया होगा। The moment I was sharing this my satsang, you won't believe गुरुजी, संगत जी, उनका आंटी का जो बॉयलर था वो फट गया। जय गुरुजी। मैं यहाँ सत्संग कर रही हूँ और वहां पे उन आंटी वॉज इन अ पेन, उनको फीवर था, तो शी इज इन दुबई, शी वॉज थिंकिंग कि मैं क्या करूंगी, मैं तो इंडिया, तो अभी मेरे नेक्स्ट मंथ जाना है, तो मैं किसको दिखाऊंगी। एंड दिस इज की आंटी, जब आप ये डांस हीलिंग का सत्संग कर रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके हील कर दिया। जब उन्होंने अपना ये सत्संग मुझे बताया कि आप अपना डांस का हीलिंग का सत्संग कर रहे थे, तब संगत जी
गुरुजी के, I was looking at Guruji Swaroop, and then I said yes, मेरे भी तो दो miscarry, I will conceive or not. और जब मैं गुरुजी, अब कैन यू इमेजिन 1999 की बात है, अब मेरा कोई भी सत्संग आप सुनोगे, ये ये पार्ट ही नहीं आया, ये पार्ट ही नहीं आया, क्योंकि मेरी सोच समझ कैसे कनेक्ट कराई गुरुजी ने उस आंटी के सत्संग में। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आपका मैं तो मेरा पूरा था उसमें, वो था, मेरा सारा निकल गया, बह गया, बहुत ज्यादा पस थी, एंड गुरुजी ने हील कर दिया। एंड नाउ नेक्स्ट डे कॉल्ड मी, शी सेड आई एम परफेक्टली फाइन, ना मेरा पेन है ना मेरा। आई सेड गुरुजी आप कैसे हील कर रहे हो? डांस के मतलब मेरा सत्संग सुनते आंटी हील हो गई, यही नहीं, ये तो पता है, बट 200% गुरुजी ने इतना मुझे हील किया हो डांस के थ्रू, तभी तो गुरुजी मुझसे डांस कराते थे, तभी तो गुरुजी सिंगिंग कराते थे। हर का गुरुजी का अपना वे था कि किस संगत को कैसे हील करना है, कैसे ब्लेस करना है। एंड देन आई सेड मैं भी तो, मेरा मिसकैरेज था और 2 बार, और मैं इतनी टेंशन में थी, तो गुरुजी ने मुझे कितना हील किया। And then I'm a mother of 2 daughters, beautiful daughter. My elder daughter तो गुरुजी की blessing, मतलब गुरुजी when I was carrying my daughter, so मुझे 4 प्रसादा समोसा खिलाते रहते थे, रज के प्रसाद खिलाते रहते। So देखो संगत जी की, and this is just 2 days back. It was on Friday. Today is Sunday. कि मेरी अपनी चीज की हीलिंग मुझे पता था, बट गुरुजी ने बड़ी क्लियरली और मैसेज दिया कि तेरी भी तो हीलिंग ऐसी हुई है। जय गुरुजी। सो संगत जी, इट्स सो ब्यूटीफुल कि एक एक पल जो गुरुजी के साथ हम बिताते हैं, हम डाउट भी करते हैं, हम लड़ते भी हैं, क्योंकि जब हमारे काम नहीं होते। एक आंटी एक सत्संग में, एक आंटी सत्संग कर रही, अंकल सत्संग सुना रहे थे, तो आंटी कहते ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿरेकल नहीं ਹੋਇਆ। तो अंकल ने कहा कि अच्छा आंटी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? हाँ हाँ फर्स्ट क्लास। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਜ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ फर्स्ट क्लास जी। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ फर्स्ट क्लास। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ फर्स्ट क्लास वर्ड है, that is a blessing। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ you are waiting ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿरेकल ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਮੂਥ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ तो 19-20 तो आएगा संगत जी। एंड वो आंटी, मतलब मैंने लाइव सुन रही थी उस आंटी को, मैंने आंटी वो सी, मैं तो साल हो गया। अंकल ने कहा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ वर्ड फर्स्ट क्लास है ना, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੋਚੋ। जरूरी नहीं है कि तुसी किसी चीज की वेट करो कोई मिरेकल होए। तो संगत जी वी ऑल आर रियली ब्लेस्ड। अगर हम अपनी बड़ी से बड़ी चीज की ब्लेसिंग्स हम देखते हैं, पर हम छोटी चीजों में कितने ब्लेस्ड होते हैं डेली, मतलब इट्स काउंटलेस। और उस सत्संग से मैंने भी एक सीख ली कि वाकई में हम सोचते हैं कुछ चीजें सोचते हैं और वो चीज नहीं होती है, तो हमें लगता है कि अरे गुरुजी ने, देखो गुरुजी साड़ी तो तुझे सुन नहीं रहे, ओदा ते रातों रात मिरेकल कर देता। अब कितने हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हमारा जो टाइम जिस चीज के लिए लिखा है वही लिखा है। गुरुजी हमें सिर्फ 10% ही तो बोल रहे हैं अपने कर्म काटने के लिए, 90% आप डील करोगे, बिकॉज ही टेक्स एवरीथिंग ऑन। ऋषि चोला में इतना अंदर लेना, मतलब यू कैन सी ब्लू, मतलब इतना गुरुजी हमारा सारी वो चीजें लेते थे। किसी का कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, हमारा गुरु अपने ऊपर लेता है सब कुछ, तभी तो हम हील होते हैं। ये मैंने एक बार देखा था, गुरुजी की बॉडी एकदम ब्लू थी, तब मुझे नहीं समझ थी कि क्यों ब्लू है, क्यों व्हाइट है इतना, बट धीरे धीरे जैसे गुरुजी से क्लोज होते गए तो समझ आती गई। तो हम संगत जी बहुत ब्लेस्ड है कि हमें दरबार मिला है, और इस दरबार में हम सब संगत जी, एक टाइम होता था कि हम कहते जी ठीक है गुरु जी है, शिव जी भी है, साईं बाबा भी है, सो व्हाट्स द चेंज इन अस?
सानू गुरु मिलन दे नाल साडा की चेंज होया। हम आज से कुछ साल पहले थोड़े से ईगोइस्टिक थे, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर थे। जे साडी गड्डी लग जांदी सी, असी बाहर आके उस वी डाउटेड अबाउट दैट पर्सन, तू मारिया किसा, तू ठहर जा, तेनू मैं छड्डांगा नहीं, तू मेरे 20,000 का नुकसान करता, तू साडा 50,000 का नुकसान। गुरु से मिलने से हमें गुरु ने ये ट्रांसफॉर्म किया कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गलती सब कोल हो सकती, जे साडा रब साडी इन्नी वड्डी वड्डी गलती दा माफी कर सकदा है, असी इंसान एक दूजे नू क्यों नहीं माफ कर सकते। आज साडी गड्डी लगदी है, बाहर निकलने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ थैंक यू सो मच, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਚ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫॉर्मेशन in us by Guru Ji, that ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ यार अपने चाचे ताए नु बाद च करांगे, यार गुरु संगत को फोन करते हैं। वो गुरु संगत को पता चलना चाहिए कि ये चीज संगत को चाहिए। वो गुरु का आदेश मान के 6 मीटर क्या 6 किलोमीटर क्या 6 घंटे के सफर करके भी पहुंच जाएंगे, चीज है। ये हमें सबको संभाल के रखनी है। हम आज भी गुरु जी से लड़ते रहेंगे, कभी हम नाराज भी हो जाएंगे, वो जायज है, वो हर किसी का अपना अपना रिश्ता है। पर गुरु जी ने अपने वे से हमें क्योर करना है, हमें ब्लेस करना है और हमें आगे उनके साथ ऐसे बढ़ते जाना है। सो दिस इज माय ब्यूटीफुल जर्नी विद गुरु जी। एंड नाउ I would like to sing one Shukrana for my Guruji, and we all will say Guruji. Jai Guruji. जय गुरु जी। आंटी so good to see you. जय गुरु सब खाते हो यहाँ पे। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, उस पल का शुक्राना, उस हर एक घड़ी का शुक्राना, कोई चीज बड़ी छोटी संगत जी, बस जो है उसका भी शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना। लगता है कि शुक्राना हमारा वर्ड कम पड़ जाएगा गुरु जी के लिए, क्योंकि जितना भी शुक्राना करें गुरु जी के लिए उतना ही कम है। मैं ये दो सभी संगत को रिक्वेस्ट करूंगी, अपना अपना गुरु जी को ध्यान लगा के अपना अपना शुक्राना करें और उस चीज का भी शुक्राना करें जिस चीज के लिए हमने कभी सोचा भी हो सकता है गुरु जी ने सोचा हो, क्योंकि ये सबको पता है कि हम कहते हैं गुरु जी सानू ते मारुति लै दो, तो की पता गुरु जी ने तुहानू BMW देनी हो। मानो मंगो नहीं। सो लेट्स ऑल प्रे टू गुरु जी कि इस पैंडेमिक, इस कोरोना वायरस को की टाइम पे हम सबको ऐसा जोड़ा है, ऐसी जोड़े रखे, हम इसी तरह गुणगान करें और जल्दी से जल्दी इस महामारी से गुरु जी जल्दी से